ہم وطنوں السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ گزشتہ سیشن کا لب لباب یہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک زندگی کو بدلنے کا ایک سنہری موقع ہے، شخصیت کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے کے لیے یہ ایک گولڈن چانس کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ کس طرح کرنا ہے۔ اس حوالے سے سادہ سی 4 باتیں شیئر کر رہا ہوں جن کو ملحوظ خاطر رکھنے سے انشاءاللہ العزیز بہترین نتائج ملیں گے۔ نمبر 1 کمٹمنٹ، نمبر 2 پریئر، نمبر 3 پلاننگ اینڈ نمبر 4 اکاؤنٹیبلٹی۔ آئیے 1 بائی 1 کر کے اس کو اختصار کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کمٹمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک عزم کرنا، ایک ارادہ کرنا، پختہ ارادہ، مضبوط ارادہ کہ میں نے اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک اعلیٰ ترین نعمت خود مختار ارادہ بھی ہے۔ یہ ارادہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کا جگر کاٹ سکتا ہے، سنگلاخ چٹانوں میں سے راستہ بنا سکتا ہے، بکھرے ہوئے سمندروں کا رخ موڑ سکتا ہے اور ستاروں پر کمندیں ڈال سکتا ہے۔ تاریخ کے اندر آپ کو جتنے بھی کارہائے نمایاں نظر آ رہے ہیں ان سب کے پیچھے یہی ارادے کا استعمال شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ تمام لوگوں کو دیا ہے، لیکن عام لوگ اس ارادے کی طاقت سے آگاہ نہیں ہوتے اور اسے استعمال میں نہیں لا پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عمر بھر محرومیوں کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں کلاشن کوف ہو، لیکن خدا نہ خواستہ کسی چور یا ڈاکو کے آ جانے پر بوقت ضرورت آپ اسے استعمال نہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، مریل اور کمزور سی خواہش کوئی بہت بڑا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف خواہش کافی نہیں ہے، بلکہ شدید خواہش کی ضرورت ہے، جسے مائنڈ سائنس کی زبان میں برننگ ڈیزائر کہا جاتا ہے۔ یہ برننگ ڈیزائر ہے جس سے وہ پختہ عزم اور ارادہ مارز وجود میں آتا ہے جو حالات اور واقعات کا رخ موڑ دیا کرتا ہے اور ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں ایک مضبوط ارادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے پریئر۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے میرے ارادے پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرما۔ آپ کا ارادہ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی مرضی، منشا اور اس کی مدد اور نصرت ساتھ نہیں ملتی، آپ کا ارادہ اکیلا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لی ہوگی تو پھر اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ اپنے مقصد کے اندر بڑا سنجیدہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی دعا کی قبولیت اتنی ہی یقینی ہے جتنا رات کے جانے کے بعد دن کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دعا کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کر دیا۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگا کرو، میں پرومس کر رہا ہوں کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوسری چیز یہ دعا ہے جس کو ساتھ شامل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں دعا کے حوالے سے 2 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دعا خالی رٹے رٹائے الفاظ کو زبان سے دہرا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دل کی دھڑکنوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 2 دعا مانگتے وقت کسی قسم کا تذبذب، شک اور تردد ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو اس حال میں کہ تمہیں اجابت کا کامل یقین ہو۔ لہذا اللہ سے مانگتے وقت اس طرح مان تان سے اور یقین سے مانگا کریں
जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मांगा करता है। जब ये 2 काम हमने कर लिए तो ये समझ लें कि 50% काम हमारा हो गया। बकिया 50% के लिए तीसरा काम ये करना है और वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है एक लाहा अमल बनाना। किसी भी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो मुख्तलिफ स्टेप्स तय किए जाते हैं, जो डिटेल्स तय की जाती हैं, उसको प्लानिंग कहते हैं। मामला दुनिया का हो या आखिरत का, प्लानिंग के बगैर बेहतरीन नताइज का हसूल बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग के अंदर 3 बातों को बतौर ख़ास ज़हन में रखिएगा। नंबर 1, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत की 2 अक़साम हैं, बड़ी अक़साम 2 हैं। नंबर 1 डायरेक्ट इबादत और नंबर 2 इनडायरेक्ट इबादत। डायरेक्ट इबादत के अंदर नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान, दीगर ज़िक्र अज़कार आते हैं, और इनडायरेक्ट इबादत के अंदर दुनिया के वो सारे काम आते हैं कि जो जायज़ हैं, एक्टिविटीज़, खाना पीना, कारोबार करना, मिलना जुलना, जाना आना वगैरह वगैरह, ये सारे काम इनडायरेक्ट इबादत हैं। कब? जब इनको अच्छे नीयत के साथ, अल्लाह की रज़ा की नीयत के साथ इनको इंसान बजा लाए तो फिर ये भी इबादत बन जाते हैं, वरना बजाते खुद ये इबादत नहीं थी। हमने क्या करना है इस माह मुबारक के अंदर, चूँकि ये अल्लाह से जुड़ने का महीना है, उसके साथ ताल्लुक़ को मजबूत और इस्तवार करने का महीना है। इनडायरेक्ट इबादत को यानी दुनिया की एक्टिविटीज़ को जिस हद तक कम कर सकते हैं आसानी के साथ, उस हद तक सुकेड़ना है और डायरेक्ट इबादत के अंदर इजाफा करना है। सैर सपाटे, मिलना जुलना, इसके लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, लिहाजा ये काम बाद में होते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ज़रूरी काम छोड़ दें, जॉब पे जाना या अपनी दुकान पे जाना और दीगर जो भी हमारी लाजमी नागुज़ीर मसरूफियात हैं, जिम्मेदारियाँ, उन सबको अदा करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको वक्ती तौर पर पेंडिंग किया जा सकता है, उनको पेंडिंग कर लें। और वैसे भी कोरोना वायरस के पेश नज़र तो ये चीज़ और भी ज़्यादा एक अहमियत की हामिल है। तो लिहाजा ये हमने पहला नुक्ता प्लानिंग के अंदर ये है। नंबर 2, जो भी आपके इबादत के मामूलात हैं उसमें कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर कीजिए। मसलन आम हालात में आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो इस माह मुबारक के अंदर किसी छठी नमाज को साथ शामिल कर लें, तहज्जुद हो सकती है या कोई और। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत का मामूल अगर आपका कोई 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, उसे आधे घंटे तक ले जाएं। अगर मजीद अल्लाह ने कोई गुंजाइश दी है घंटे तक चले जाएं। इसी तरह फिर मुख्तलिफ अज़कार हैं, अवराद हैं, उनकी कोई मिकदार मुकर्रर करें। कुछ पहले से चली आ रही है तो उसमें मजीद कुछ ना कुछ इजाफा करें। तो कुछ ना कुछ ऐसा इजाफा होना चाहिए, कोई ऐसा एहतमाम होना चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक को भी पता चले और रमज़ानुल मुबारक को भेजने वाले खुदा को भी नज़र आए कि वाकई आपकी नज़र के अंदर इस माह मुबारक की कोई कदर व कीमत है और आप इसके लिए कोई खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई बाउंड नहीं कर रहा हूँ कि ये अमल करें वो करें, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि नमाज़ों के बाद कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और दुआ और सदका, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। बतौर ख़ास इस माह मुबारक के अंदर इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और जिस हद तक हो सकता है इनमें इजाफा कर सकते हैं करें। तो ये हमारी प्लानिंग के अंदर दूसरी चीज़ है। और प्लानिंग के अंदर ही तीसरा नुक्ता ये है कि अपने वक़्त को मैनेज करें। वक़्त को मैनेज किए बग़ैर आपके वक़्त के अंदर ना बरकत आ सकती है और ना ही आप वक़्त से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आपकी मेन चीज़ें जो हैं वो प्लान होनी चाहिए। मसलन आपका खाना पीना, आपका सोना जागना, नमाज़ों के औकात और इसी तरह और बड़े बड़े मामूलात और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कोशिश करें मैनेज करने की। और ये प्लानिंग अगर डेली बेस के ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है और अगर लिखी हुई शक्ल के अंदर हो तो और ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी प्लान होनी चाहिए और हत्तल वसा ये होना चाहिए कि आप उसके मुताबिक अमल भी कर रहे हैं। तो ये तीसरी चीज़ थी प्लानिंग। प्लानिंग के बाद एंड पर चौथी चीज़ जो है वो अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है अपना एहतसाब करना,
वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा लेना कि आप अपने मकसद की तरफ किस हद तक बढ़ रहे हैं। इस अकाउंटेबिलिटी के अंदर फिर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, तजदीद अज़म। हर सुबह जब उठें, हर सुबह को अल्लाह का एक तोहफ़ा समझकर, एक नया तोहफ़ा समझकर नए अज़म के साथ हर दिन के अंदर दाखिल हों। एक मरतबा का किया हुआ अज़म सारी ज़िंदगी चलना बहुत मुश्किल होता है, या लॉन्ग टर्म चलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा ज़िंदगी के अंदर कितनी मरतबा आपने अज़म किया कि आज के बाद मैंने ये काम ऐसे ही करना है, 2-4 दिन के बाद अज़म की गिरें ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा अज़म की तजदीद करना बहुत ज़रूरी है। हर नए दिन के आगाज़ के अंदर अपने अज़म की तजदीद करें, अपने इरादे की तजदीद करें कि इंशाअल्लाह आज के दिन को अपनी तयशुदा अक़दार के मुताबिक बसर करना है। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ है, सारा दिन की जो एक्टिविटीज़ के हैं उनके ऊपर शौरी नज़र रखना। हर चीज़ काम को करते वक्त उसके अंजाम पर गौर करना कि इस काम का, इस एक्टिविटी का, इसका अंजाम क्या होगा। क्या ये मेरे मकसद की समत में बढ़ रहा है या उसके खुदा न खास्ता एंटी समत में जा रहा है। कहीं ये मेरी मेहनतों पर पानी फेर देने वाला काम तो नहीं है। और नंबर 3, रात को सोने से पहले दिन भर की एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेना और देखना कि कहाँ कहाँ मैंने अच्छे काम किए और अपनी तयशुदा अक़दार के मुताबिक, अपनी मैनेजमेंट के मुताबिक अमल किया। जहाँ जहाँ ऐसा हुआ वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जहाँ कहीं कमियाँ और कोताहियाँ रह गई हैं उन पर इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी मांग कर जो उनके मनफी असरात हैं उनसे अपने आप को बाहर निकालें। तो ये चौथी चीज़ थी जिसको हम अकाउंटेबिलिटी का नाम दे रहे हैं। तो आप इस हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा सादा सा म्यार दिया है। वो म्यार अगर कहीं आप जहन में रख लें तो फिर नताइज देखें हर आने वाले दिन में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन इस्तवा यौमाहु फहुवा मग़बून। जिस बंदे के 2 दिन बराबर हैं वो समझ ले वो खसारे में जा रहा है। मतलब ये कि आज से 24 घंटे पहले मेरी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ एंगल्स की जो पोजीशन थी, अगर 24 घंटे गुजरने के बाद भी मैं ईमान की और अमाल की उसी सतह पर खड़ा हूँ और शख्सियत के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी का एक दिन ज़ाया हो गया और मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ना आ सकी। तो फरमाया वो बंदा खसारे में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ये फार्मूला हमेशा के लिए दिया, 12 माह के लिए दिया, मगर हम कम अज़ कम इस माह के अंदर तो इसको अप्लाई करें कि हर रोज़ रात को देखें कि आज मेरी शख्सियत के अंदर कल की निस्बत कितनी बेहतर आई है। कोशिश करें कि आपकी शख्सियत हर दिन के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर इम्प्रूव हो रही हो। अगर थोड़ी थोड़ी बेहतरी भी डेली बेसिस पे आती चली गई तो महीने के एंड पर कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है ना। महीने के एंड पर वो तब्दीली इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी जो वाज़े तौर पर आपको भी महसूस हो रही होगी और आपके इर्द गिर्द के माहौल के लोगों को भी नज़र आ रही होगी। फिर उसके बाद जो कमियां रह गई उनको पूरा करने के लिए आइंदा ज़िंदगी पड़ी हुई है। एक दफ़ा काम के शुरू करने की देर होती है, मुश्किल होती है, बाद में फिर मामलात का आगे बढ़ना आसान होता चला जाता है। तो ये 4 चीज़ें थीं जो मैं बयान कर रहा था। इनको सोचें, समझें, गौर करें और अगर साथ एक काम और छोटा सा कर दें तो सोने पे सुहागा है। यूट्यूब के ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है जिसका उन्वान है नूरे सकीना। बस एक मरतबा हिम्मत करें और इस खिताब को सुन लें तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक आपका मज़ीद मज़ेदार बन जाएगा। वो लेक्चर आपको बताएगा कि आपका मकसद क्या है, इस माह मुबारक के अंदर आपने पाना क्या है। और अगर एक मरतबा वो नूरे सकीना आपके अंदर आ गया ना तो इंशाअल्लाह उसके बाद सुकून को पाने के लिए आपको बाहर के सामानों की ज़रूरत नहीं रहेगी, सुकून का चश्मा आपके अंदर ही होगा। सो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि वो हम सब को ये सारी बातें सोचने, समझने, याद रखने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।